पाया हुआ था। नमपाय पांडा भी हो गया था। हाँ जी। सीरीज पैनल सब हो गया ना। सर सीरीज में हुआ है। क्या है? नमपाय और पांडा हुआ है। नमपाय पांडा हो गया था। राइट। यस। ये तो आपको नमपाय का है ये फाइल। राइट। मैटप्लॉटलिब हो गया सर? नहीं सर। नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, 2 मिनट दीजिए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? पहला चीज हम बात करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो आवाज आ रही है आपको? राइट। आ रही है सर। वेरी गुड। मैटप्लॉटलिब is a standard Python library file. It uses for data visualization in Python. Data visualization means we can say we are creating the different kind of chart such as pie chart, histogram, bar chart, etc. So it is package of matplotlib. मैटप्लॉटलिब के लिए सबसे पहला आपको स्पाइडर इंस्टॉल होना चाहिए। इट इज स्पाइडर सॉफ्टवेयर, देख रहे हैं ना? वर्जन इज द 6। इट इज स्पाइडर सॉफ्टवेयर। सो डाउनलोड द स्पाइडर इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल द स्पाइडर सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। ओके। I'm just clicking on the spider software. See, now we can see here spider software is opening right now. So it is taking few minutes. Now spider software is open. Now we can see the spider software is opening right now. It takes few seconds. Now we can see it is a screen of your spider software editors. It is ID. So it is a spider software. Right now it is connected with the kernel. We can see. Right. So we can do the spider software. So now we are talking the matplotlib. So guys, we are talking here the matplotlib. Matplotlib is a standard Python library files to use data visualization in Python. Python में अगर हम बात करते हैं, we are talking about the data visualization. In this situation, we can use here matplotlib library files. So guys, we are talking here matplotlib. See here, we can see these programs. In these programs, I'm using here, listen please, careful, listen please. See here, import matplotlib.pyplot as PLT. It is a package. I have import the matplotlib package. So it is mentioned here, matplot import. Import is a keyword. By use of the import keyword, we can invoke the matplotlib library file from Python library matplotlib.pyplot as PLT. PLT is a reference of matplotlib library files. So we are creating the reference PLT of matplotlib library file. Another package we are importing here, it is a NumPy and its reference is NP. So I have invoked here two packages. One is the matplotlib, its reference is the PLT. Another package is here NumPy and its reference is NP. तो मैंने यहाँ पर दो पैकेज को यहाँ पर कॉल किया है। Now X point,
X point is a what? It is an array. And P dot array, I have used one square bracket. So it is all one dimensional array. I have discussed in NumPy also. Now, Y point. If you want to create graph, so there is a two requirement. One is x-axis and another is a y-axis. So we are writing here NP dot array. It is a 0 to 2 to 5 0. So we are creating the two axes x and y. हमने बात कर चुके थे कि x क्या है? It is a independent axis. Y क्या है? Dependent axis. Now PLT dot plot. Up see here, PLT is a what? PLT is a reference of the matplotlib dot plot. Plot से क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आता है, याद रखेंगे. Plot PLOT. Plot is a what? To create a straight line. Plot क्या create करता है? It create here a straight line. और मैंने यहाँ पे यूज किया सी x point y point. तो x point means the what? It is the x array and it is a y point means the what? It is a y array. तो x point क्या है? 0 to 6 और y point is the 0 to 250. ये आपस में रिग्रेट होगा और कहाँ स्टोर होगा? PLT में. अगर PLT डॉट सो इज द इनबिल्ट फंक्शन. ये क्या करेगा? आपको ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट कर देगा. अगर इस कोड को मैंने यहां से उठाया और मैंने जो यहां पर यूज किया है वो पैकेज है स्पाइडर. मैंने यहां पर गया स्पाइडर के पास में. कहां जा रहे हैं देखेंगे? ये मेरा स्पाइडर का पैकेज है. हमने जाकर स्पाइडर पैकेज में इसको डाल दिया एंड आई वांट टू रन दिस एप्लीकेशन. मैंने इस एप्लीकेशन को रन दिया. जाएंगे प्लॉट पे. देखिए तो आ गया ग्राफ. कितना है ये? एक्स एक्सिस 0 to 6. देखिए 0 to 6 है कि नहीं है? एंड y एक्सिस द 0 to 250. तो 250 है या नहीं? y एक्सिस. नाउ PLT डॉट प्लॉट. प्लॉट से क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन. इट इज ए स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग द प्लॉट. अब PLT डॉट सो से डिस्प्ले किया. दिस पॉइंट इज क्लियर? हेलो. Yes, yes. तो आई हैव क्रिएटेड हियर प्लॉट. प्लॉट इज क्रिएटिंग द स्ट्रेट लाइन. प्लॉट का जो यूज करते हैं सर, ये प्लॉट क्या करता है? इट क्रिएट स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ पे क्रिएट किया. तो इट इज अ वर्ड हाउ कैन यूज मैटप्लॉटलिब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल. मैं सारा भेज दूंगा. कोडिंग मत लिखें, मैं सारा भेज दूंगा आपको एक ही बार में. प्लीज समझें. नाउ सी गाइस, वी आर टॉकिंग अनदर प्रोग्राम्स ऑफ मैटप्लॉटलिब. We are talking here another program of matplotlib. So we can see now, just close this application. और हम दूसरी बात कर रहे हैं यहां पर. सी नाउ इट इज अनदर प्रोग्राम. सर इसमें क्या होगा? वहां 0 to 6 है, यहां कहां पर है? 1 to 8. यही है ना? वहां 0 to 250 था, यहां 3 to 10. बाकी तो सेम एज इट है ना सर? हेलो. दिस हाँ पॉइंट जी इज. सर, हाँ जी. यस यस. अगर हमने इस ग्राफ को हमने रन करवा रहे हैं, अभी तो 0 to 6 वाला था. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो सी आर्किटेक्ट बंद चेंज हो गया. क्या हो गया? 1 to 8 एक्स एक्सिस, 1 to 10 क्या हो गया? वाई एक्सिस. 3 to 8. तो वी आर क्रिएटिंग द ग्राफ दिस वन. अगर मैंने इसको नहीं यूज किया, अब इसको देखिए ये क्या कहेगा? मैंने क्या लिखा है? ओ. क्या लिखा है? ओ. अब हमारा जो पॉइंट होगा, हम लोकेशन कर देते हैं पॉइंट. पॉइंट क्या होगा हमारे पास में? मैंने यहां मेंशन कर दिया ओ. तो हमारे पास में पॉइंट पर क्या हो जाएगा? लोकेशन में आ जाएगा ओ. अगर मैंने यहां पर डाला सी, जो सिंबल डालेंगे ना वह सिंबल जनरेट कर देगा. मैंने इसको उठाया यहां से सी. अभी हमने इसको यहां पर डाल रहे हैं. अब देखिए अभी ग्राफ में हमने रन कर दिया है. देखिए तो क्या आ रहा है? देख रहे हैं ना? दो ही पॉइंट है ना, 1 और 3. यस यस 1 यस. और 3 पर क्या है? आ गया ना सिंबल. दूसरा क्या है? इस 8 to 10. 8 to 10 पर यह सिंबल है या नहीं है? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस. तो मैंने यहां पर क्या किया सी, मैंने यहां पर दोनों यूज किया है यहां पर. एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई होप. हाँ जी, क्लियर है. वेरी गुड. अब हम छोटी सी बात करते हैं सर. मैंने यहां पर आया, ये क्या कर रहा है? सी एक्स एक्सिस पर क्या होगा? 1 3 2 8 6 1 8 10. यही होगा ना सर?
अगर हमने इसको यहां से रन करवा रहे हैं तो वी कैन से हमारा जो वैल्यू है, यहाँ दो वैल्यू था, यहाँ मल्टीपल वैल्यू यूज किए ग्राफ में। देखिए तो क्या आ गया कि नहीं आ गया? पहला क्या है? 1 2 3, 1 पे 3 है, तो 1 पर 3, 4 और 2 के बीच में होगा ना, 1 3। अनदर इज 2 8, 2 हो गया और ये 8 हो गया। दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी। राइट। तो मल्टीपल ग्राफ हमने यहाँ पर यूज किया है, मल्टीपल वैल्यू यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्क ग्राफ का क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट लेटर वी आर डिस्कस हियर। नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो सी, अब हम देखते हैं दिस प्रोग्राम्स। इसमें क्या कर रहा है? मार्क 0। अब मार्किंग हो जाएगा वहां पर, जो ग्राफ बन रहा है वहां पर हम क्या जनरेट करते हैं? वी आर जनरेटिंग द मार्किंग सिंबल, ओ हम डाले हुए हैं। अगर हम रन करवा रहे हैं, देखिए तो आ गया मार्किंग सिंबल। अभी ओ की जगह में स्टार डाल देते हैं, सी। ओ की जगह क्या किया गुरु जी? स्टार डाल दिया। अब रन कर भाई, स्टार का सिंबल आ जाएगा। चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हुआ सर? स्टार नहीं हो गया यहाँ पर? यस। राइट। तो हमने डिफरेंट मार्किंग, हम मार्क का मतलब होता है मार्कर यूज करते हैं किसके लिए? वी कैन असाइन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल ऑन ग्राफ्स। जहां पर वैल्यू मैच कर रहा है वहां पर हमने वो सिंबल के थ्रू क्या होगा, वो डिनोट कर देगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग, अब क्या करेगा यहाँ पर? ओ और आर लगा हुआ है, तो क्या करेगा बताएंगे? ओ और आर, ओ क्या है? सिंबल। आर मतलब रेड, क्या लगा हुआ है? रेड। अगर गुरुजी मैंने इसको यहां पर रन करवा रहे हैं सी, और आप रन करवा, देखिए आ गया ना, आर से ग्राफ क्या हो गया? रेड हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। और ये क्या है? ओ का सिंबल है कि नहीं है? अगर ओ के हर जगह हम अगर स्टार डालेंगे तो किसका सिंबल आ जाएगा यहाँ पर? ओ और स्टार। देखिए स्टार का सिंबल आ गया कि नहीं आ गया? ओके। दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी। तो मैंने यहाँ मार्कर नहीं यूज किया। अगर दो आर्गुमेंट पास करना है तो कॉलन लगा देंगे। क्या लगा दिए? सिंगल कोट में कॉलन, कॉलन लगा देंगे। हम क्या लिखेंगे? सिंगल कोट स्टार कॉलन आर, सिंगल कोट बंद। तो जो सिंबल जहां जहां मैच करेगा वहां पर स्टार हो जाएगा, और आर मीन्स रेड कलर। ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा किस कलर से? इट रिप्रेजेंट इन द रेड कलर, ये रिप्रेजेंट करेगा रेड कलर से। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस। वेरी गुड। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सी एयर। अब हमारा यहां पर क्या होगा बताएंगे? ये विड्थ है। एमएस का मतलब होता है वीक, मार्कर मतलब क्या होता है? सिंबल। मार्कर क्यों यूज करते हैं गुरुजी? सिंबल के लिए। और एमएस मतलब होता है डायमेंशन, विड्थ। अगर हमको विड्थ देनी है, ये सब भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे, लिखिए मत, समझिए। हमने अगर यहाँ पर मार्क सिंबल देनी है, हमने यहाँ पर क्या किए? पेस्ट कर दिए। अब देखिए तो मार्कर लग गया। कितना है यहाँ पर? विड्थ कितना हो गया इसका? ये जो सिंबल का 20। विड्थ कितना हो गया? 20 ना। अगर गुरुजी मैंने यहाँ पे कर दिया 80, तो बहुत मोटा सा हो जाएगा। देखिए हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। हाँ जी। दिस पॉइंट इज क्लियर? आई हैव यूज्ड द टू थिंग एमएस। एमएस का मतलब होता है वो सिंबल का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे। जितना इनपुट करेंगे वैल्यू, उसकी क्रॉसपॉन्डेंस वैल्यू क्या होगा? साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और क्या करेगा वो? डिक्रीज करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप। या। वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप देखो बात करते हैं से आफ्टर दिस वन। आगे देखिए ये क्या कर रहा है? कलर आर। हमने अगर दो चीज लिए थे, मार्कर भी लिए थे गुरुजी पीछे प्रोग्राम में, और कलर भी लिए थे। तो कलर नहीं लिखे थे, सिंगल कोट में या कॉलन लगाए थे। अगर मुझे केवल कलर ही चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द कलर, तो हमने कर दिया कलर और कलर का नाम। तो क्या होगा? मेरा जो ग्राफ है वो पर्टिकुलर कलर में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आई हैव नॉट यूज सिंबल, मैंने यहां पर सिंबल नहीं यूज किया है। आई वांट टू चेंज द स्टेट लाइन, ग्राफ का लाइन मुझे कलर चेंज करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर? हैव एनी क्वेरीज? नो। वेरी गुड। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं से आफ्टर दिस वन, आप देखिए यहां पर क्या करता है? इट इज अ डिफरेंट थिंग। हमने लेबलिंग कर रहे हैं, यहां तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। ये 1D है ना, एक्स एक्सिस में ये वैल्यू होगा, वाई एक्सिस में ये वैल्यू होगा। दिस इज द 1D। टू अरे बना दिया मैंने, वन डायमेंशनल। अब गुरु जी क्या करते हैं? पीएलटी डॉट प्लॉट।
प्लॉट क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन ना। हाँ आई जी। डिस्कस विथ यू प्लॉट टू क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन। अब कहा पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सिस, उसमें क्या होगा? एवरेज प्लस लेबलिंग कर दिया। एंड पीएलटी डॉट वाई लेबल, इसमें क्या होगा? क्वालिटी ऑफ ऑर्बिट। अब पीएलटी डॉट शो डिस्प्ले कर देगा। अगर हमने यहाँ पर लेबलिंग करना है तो सी यार, मैंने यहाँ पे गया, स्पाइडर को ऑन किया और मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, आई वांट टू रन दिस एप्लीकेशन। देखिए तो लेबलिंग हो या नहीं हुआ, देख रहे हैं ना? एक्स लेवल में क्या है? एवरेज प्लस आ रहा है यहाँ पर सर। हाँ जी। हाँ जी। और वाई लेवल में क्या है? पीएलटी डॉट वाई लेवल में ये वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने क्या किया यहाँ पर? लेबलिंग कर दिया। आई हैव यूज्ड हियर लेबलिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप लेबलिंग कर रहे हैं। ग्राफ लेबल्ड हो गया। क्या हो गया? आपका ग्राफ यहाँ पर लेवल हो लेबल्ड हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट प्रोग्राम्स की बात करते हैं से, अगर मैं यहां पर आ रहा हूं वी कैन सी, अब ये क्या करेगा मुझे बताइए तो? ये नेस्टेड ग्राफ है। एक ग्राफ के अंदर में क्या होगा? वी आर क्रिएटिंग द अनदर ग्राफ। तो इट इज कॉल्ड नेस्टेड ग्राफ। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? नेस्टेड ग्राफ। देखिए यहां पर समझे, मैंने दो अरे बना दिया है, राइट? 1D है दोनों, एक्स वाई। ये सब प्लॉट, और हमने एक्स वाई को हमने ऐड कर दिया। हमने सो नहीं लिखा है यहां पर। पहला ग्राफ का आर्क बनेगा। इट इज नॉट क्रिएटिंग, आई हैव नॉट यूज द डिस्प्ले या सो फंक्शन नहीं यूज किए हैं। फिर दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, इसको भी शो नहीं किया। सब प्लॉट, सब ग्राफ। फिर इसी तरह से तीसरा बना दिया। फिर क्या किया? चौथा बना दिया। फिर क्या किया? पांचवा ग्राफ बना दिया। सो कहीं नहीं लिखे हैं। फिर छठा बना दिया। आप सिक्स ग्राफ बनाकर लास्ट में सबमिट कर दिया डिस्प्ले डॉट पीएलटी डॉट शो। तो पीएलटी डॉट शो जो हमारा सिक्स सब ग्राफ है, सभी ग्राफ को क्या करेगा? यहां पर डिस्प्ले कर देगा। वी कैन सी, हम एक शो फंक्शन मल्टीपल ग्राफ को क्या करता है? जनरेट करेगा। वी कैन सी द रिजल्ट। इसमें आई थिंक कुछ फॉल्ट है, तो वह देखना पड़ेगा मुझे, राइट? पूरा कॉपी नहीं हुआ होगा, आई थिंक ऐसा भी हो सकता है। देखता हूँ, आई वांट टू चेक इट। पूरा कॉपी नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना? सी हियर, जस्ट सेलेक्ट ऑल थिंग्स and copy of this thing. Now we can see delete of this matter. अब मैंने इसको यहां पर यूज किया है। देखिए अब रन करेंगे, देखिए चेंज हो गया। सिक्स ग्राफ है कि नहीं है? हाँ जी। और सबका एक ही है ना, पीएलटी डॉट शो लास्ट में लगा दिया ना। तो हाँ जी। मैंने यहां पर क्या कहा? सी पीएलटी डॉट शो फंक्शन क्या काम करता है? टू डिस्प्ले द नेस्टेड ग्राफ। जो भी नेस्टेड ग्राफ है वो सारा क्या किया? यहां पर डिस्प्ले कर दिया। इट इज कॉल्ड पीएलटी डॉट शो। क्या करते हैं? पीएलटी डॉट शो। शो इज ए मेथड। क्या किया इसने? जितना भी है वो सारा चीज शो कर दिया। ओके। लेट इट बी अ डिस्कस हियर। अब ये क्या करेगा सर, समझाएंगे मुझे? हमने डाल दिया ये पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करते थे, आप कहते हैं स्केटर। मैंने सिंबल चेंज कर दिया यहां पर। क्या लिखा? एक मिनट होल्ड करिए सर। हेलो, 4765, 4765, 4765। लॉगिन हो गया? हेलो। तो मैं, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर, plt dot scatter means the word to display the dot symbol. प्लॉट से स्ट्रेट लाइन होता है, एंड स्कैटर वी कैन यूज हियर टू डिस्प्ले द डॉट सिंबल। सो दैट्स व्हाट वी कैन सी हियर। हाउ कैन वी कैन यूज दिस वन? मैंने इसको अगर यूज करना है तो सी दिस डायग्राम। अगर रन कराना है, देखिए क्या आ रहा है आपका? डॉट सिंबल आ रहा है ना सर? ये स्केटर का पहचान है। प्लॉट से स्ट्रेट लाइन होगा, स्केटर से डॉट सिंबल। अगर हम वैल्यू कम लेते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहां से इतना डेटा को मैंने डिलीट कर दिया, छोटा अमाउंट लेकर चल रहे हैं, राइट? कितना डेटा है? 4।
तो एक्स एक्सिस अगर 4 डेटा है तो वाई एक्सिस भी उतना ही होगा, 2 2 4, दोनों का लेंथ इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज इट गिव द एरर। देखिए दोनों का साइज होगा, अब रन करिए, कितना डेटा है, 4 ही है ना। सी 599, 5 पे क्या है यहाँ पर, सी 5 ये .5 है, तो 5 यहाँ होगा, 99, 98 सुपर है ना ये, देख रहे हैं ना, 5 पर 99, हाँ जी। 7 86, 7 इज दिस वन, 86 इज दिस वन, देख रहे हैं ना। तीसरा क्या है, 7 88, 88 पर क्या है, 7 है, तो 88 ये हो गया, पर क्या है हमारा 7 है। तो हमारे पास में क्या है, आई एम क्रिएटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, इसमें 4 है, इसमें 4 है, दिस पॉइंट इज क्लियर, 4 ग्राफ है या नहीं है, 4 हाँ पॉइंट जी। नहीं है। स्केटर क्या काम करेगा, डॉट सिंबल देगा। अगर हमने स्केटर हटाते हैं गुरुदेव, मैंने क्या कहा, आई एम रिमूविंग द स्केटर, अगर हमने यहां से क्या करते हैं स्केटर, हमने यहां से देखिए मैंने क्या किया, कट, और कहा प्लॉट। अब अगर रन करा रहे हैं, देखिए क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया ना, क्या लगा थे गुरु जी, प्लॉट लगा दिया ना। यस। जैसे जैसे वैल्यू है उसके क्या हो रहा है, प्लॉट हो रहा है। और प्लॉट हटा देंगे, स्ट्रेट लाइन हट जाएगा, अगर हम स्केटर डाल देंगे तो डॉट सिंबल में आ जाएगा, सी एयर, अब किस में आ गया, ये डॉट सिंबल में आ गया। तो आई हैव यूज हियर टू थिंग, वन इज द स्केटर, अनदर इज द प्लॉट्स, दिस पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है सर। वेरी गुड। नेक्स्ट की बात करते हैं सी, आफ्टर दिस हम लोग बात करते हैं यहां पर, देखिए ये क्या करेगा यहां पर, देख रहे हैं हमारे पास में एक पाला हमारा ग्राफ ये बना रहा है, दूसरा ग्राफ हमारे दो अरे लिए है ना, वी आर क्रिएटिंग द टू अरे, आराम से कर सकते हैं, दो अरे हम लेकर यहां पर हम बना रहे हैं, तो इट इज द मल्टीपल अरे। अगर हम रन करते हैं, देखिए दो ग्राफ हमारा पास में आ गया, पहला जो सिंबल एक्स वाई का बन रहा है, ये सिंबल एक्स वाई का है, ये किसका है, दूसरा है ब्लू वाले का है, तो दो टाइप के हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इस तरह से दोनों में हम स्केटर यूज किए हैं। अगर एक में हम स्केटर करते हैं सर, एक में हम प्लॉट यूज करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, प्लॉट यूज कर दिया। अब अगर हम रन करा रहे हैं तो सी देखिए, अब प्लॉट भी और स्केटर भी है, हाँ जी। दोनों है कि नहीं सर। तो इस तरह से हम डिफरेंट, जो मैटप्लॉटलिब है, इट इज बेसिकली टू डिस्प्ले द डेटा विजुअलाइजेशन, जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वी कैन यूज द मैटप्लॉटलिब, इट इज अ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। सी नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सी, अब हमने नाम दे रहे हैं, वी आर नॉट इनपुट द नंबर, अब बना रहे हैं बार ग्राफ, BAR, इट इज व्हाट, वी आर क्रिएटिंग द बार ग्राफ। तो एक्स में क्या होगा ABC, वाई में क्या होगा ये डेटा वैल्यू। तो नाउ वी कैन सी, आई वांट टू रन दिस ग्राफ, तो वी कैन सी हियर, अगर हम इसको रन करवा रहे हैं, देखिए बार ग्राफ क्रिएट हो गया, हाँ जी। एक्स में क्या हो गया सर, ABCD, और वाई में आ गया डेटा वैल्यू, तो वी आर क्रिएटिंग द बार ग्राफ। गुरुदेव अगर बार के साथ एच डालेंगे, देखेंगे, तो अब क्या होगा, ये ग्राफ चेंज हो गया हॉरिजॉन्टल, देख रहे हैं ना, आर हम्म। के साथ क्या लगा दिया सर, एच। तो अब ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल, जो ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है किसमें, हॉरिजॉन्टल शेप में। ओके। अगर हमने यहां से एच हटा देंगे गुरुदेव, तो क्या होगा, ये नॉर्मल ग्राफ में आ जाएगा, देखिए आप नॉर्मल में आ रहा है ना। इफ यू हैव यूज्ड द एच, अगर मैंने एच डाल दिया, तो अब देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो नाउ आई हैव डिस्कस हियर टू क्रिएट बार ग्राफ। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे सर, मैंने यहाँ पे बात किया, क्या बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग हियर बार ग्राफ, हाउ कैन क्रिएट बार ग्राफ, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस वी आर डिस्कस हियर, अब हम लोग बात करते हैं दिस वन, ये क्या बना रहा है, बार एच, सर अभी बता चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। एक मिनट होल्ड करेंगे, दोबारा चेक कर लेता हूं स्क्रीन। शेयर स्क्रीन, शेयर हुआ सर, नहीं सर। नहीं हुआ, नो। शेयर स्क्रीन, अब आ गया होगा मे बी।
नहीं सर, अभी भी नहीं आया। मैं रीजॉइन करूं क्या? नहीं आया क्या? नहीं सर, अभी भी नहीं आया। कुछ खुला हुआ है स्क्रीन पर? मेरे स्क्रीन पर देखिए तो। सर आपका फोटो आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है। अब आपका फोटो। रिज्वाइन करिए तो। हो सकता है आप सब नेटवर्क में फॉल्ट हो। हेलो सर। हाँ जी हेलो। सर, आ रही है। अब हो रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है अब? दिस पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है सर। एच वाला क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, सी लेटर वियर। अब हम लोग जो बात करते हैं, हमने बार ग्राफ के बाद जो हम यूज कर रहे हैं, वी कैन सी हियर। देखिए अब हमने यहां पर यूज कर दिए कि क्या चीज है, हमने विड्थ डाल रहे हैं। कितना डाले हैं? 0.1। पहले क्या डाले थे? एमएस, याद है ना? उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अब हमने यहां पर विड्थ डाल रहे हैं। तो सी यार, जो मेरे ग्राफ है उसकी डायमेंशन में डिस्टेंस हो जाएगी। देखिए, देखिए कितना डायमेंशन डिस्टेंस हो रहा है ना। हमने डाला है 0.1। अगर करते हैं इसको 0.2 रन, देखिए बड़ा हो गया कि नहीं हो गया सर? हाँ जी। मेरा नाम क्या है? 0.5, उससे भी बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं यहां पर? तो वी हैव इंक्रीज द विड्थ ऑफ चार्ट। हम लोग चार्ट की क्या किए यहां पर, उसकी जो साइज है उसको क्या किए हम, इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, विड्थ के लिए अप्लाई किए यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, पाई चार्ट क्या बना रहे हैं सर? यहाँ पर देखिए पाई चार्ट। यहाँ पर दो चीज देखेंगे सर। ये क्या चीज है वाई वाली, बताएंगे आप? अरे है ना गुरुदेव, एनपी डॉट अरे है कि नहीं है? एनपी क्या है? नंपाई ना। हाँ जी। और ये दूसरा माई लेवल क्या है? माई लेवल क्या है? माई लेवल क्या है? सर माई लेवल, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। माई लेवल अरे है, सॉरी लिस्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक माई है लेवल ठीक है। क्या है? माई लेवल इज लिस्ट। माई लेवल लिस्ट है। तो सी जितना आपका कितना डेटा है, चार ना अरे में। और अरे में नंबर ऑफ डेटा कितनी है? अरे में नंबर ऑफ डेटा फोर है। हेलो, हाँ हाँ आज करूंगा क्लास में। अरे में डेटा कितना है? नंबर ऑफ फोर है। तो फोर नंबर ऑफ डेटा, एंड उसमें कितना है, लेवल में कितना है? फोर है दोनों में। फोर फोर, आई हैव यूज्ड द फोर फोर डेटा। सो सी हियर इट इज अ 35 25 25 15। इट इज अ 1D array. Another you are using here apple banana mango, these are the what, it is array. One is the array, another is the what, another is the dictionary. एक हमारा अरे है और दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा है लिस्ट है। हम प्लेन अरे टू अरे किए हैं, अब क्या है, अरे टू लिस्ट है। मैंने कहा पीएलटी डॉट पाई। तो जब हमने अरे और लिस्ट यूज करना है तो लेबल यूज करना है अरे लिस्ट के साथ। हम एक्स कोमा वाई करते थे ना, अब एक्स कोमा वाई नहीं करेंगे। अगर हमने यहां पर करनी है, मैंने कहा यहां पर एक्स किया, अगर मैंने यहां पर एक्स लिख रहे हैं तो हमने यहां पर क्या एक्स लिख दिए तो क्या होगा, लेकिन ये डिक्शनरी है। इफ ये इट इज अ डिक्शनरी तो क्या यूज करेंगे, आप कीवर्ड यूज करेंगे लेबल्स। अगर अरे होता तो क्या होता, एक्स कमा वाई होता, बट इट इज नॉट अरे, इट इज अ लिस्ट। अगर ये लिस्ट है तो हम क्या करेंगे, लेबल्ड यूज करेंगे। अगर हम इसको रन करवा रहे हैं सर, देखेंगे सी, अगर हम इसको रन करवा रहे हैं तो अरे के साथ हम लिस्ट यूज किए हैं। देखिए पाई चार्ट बना या नहीं बना, देख रहे हैं ना? इट इज व्हाट, पाई चार्ट, ये वैल्यू है हाँ ना जी। अरे वाली। और ये क्या है, जो हमारा डिक्शनरी है, सॉरी लिस्ट है एक्स वाला, वो लेबलिंग कर दिया ना भाई। ये रेंज जो है कितना है, 35, एप्पल का हो गया।
लिस्ट के थ्रू हम लेबलिंग कर रहे हैं, ये किसका है हमारा, ये किसका है, ये सारा लेबलिंग कर रहे हैं ना। तो अगर अरे के साथ लिस्ट यूज करेंगे तो वी कैन यूज हेयर, जहां पर हमने यूज करना है लेबल्स कीवर्ड। क्या यूज करना है, वी कैन यूज लेबल्स कीवर्ड। लेबल्स कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको लेबलिंग करते हैं। तो आई हैव यूज हेयर पाई चार्ट। क्या यूज किया यहां पर, पाई चार्ट यूज किया। सी, अब हम चाहते हैं कि पाई चार्ट में अपनी कलर भरे। अभी हमने देखा था कि इट इज अ बाय डिफॉल्ट कलर, दीज आर द बाय डिफॉल्ट कलर, इट इज इंसर्टेड इन द पाई चार्ट, बट आई वांट टू फिल यूजर्स कलर्स। तो क्या करेंगे हम सर, हमने यहां पर ले लिया सी, ये हमारा क्या है, दिस इज द वर्ड, ये हमारा लेबल्स हैं और ये भी हमारा लेबल्स हैं। आई हैव यूज्ड द टू, वन इज द माई लेबल और एक क्या है, माई कलर। दो लिस्ट हो गया हमारे पास में, और एक हमारा वन डी अरे है। और मैंने क्या किया, plt डॉट पाई, और मैंने लिखा यहाँ पर y इज द वर्ड, इट इज अ वन डी अरे, एंड वी आर एडिंग हियर लेबल डॉट माई लेबल एंड कलर डॉट माई कलर, plt डॉट शो। तो क्या करेगा, ये डिस्प्ले कर देगा। सी हियर, अपनी चॉइस की कलर, बाय डिफॉल्ट कलर नहीं लेगा, अपनी चॉइस की कलर ये एक्सेस करेगा। सी दिस ऑप्शन, हमने क्या डाला है पहला कलर गुरुदेव, एप्पल ब्लैक। तो ये रेंज किसका है, ब्लैक, और इस पर कौन है, एप्पल, वैल्यू कितनी है 35। दिस पॉइंट इज क्लियर। दूसरा हमारा है हॉट पिंक, ये है हॉट पिंक 25। तीसरा है बी, बी मतलब ब्लू, और लास्ट है सिंबल्स के थ्रू यूज किए हैं, इट इज अ ग्रीन। तो वी हैव यूज हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर एंड द लेवल ऑफ द पाई चार्ट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज किए हैं और उसको क्या किए हैं, लेबल यहां पर यूज किए हैं। हैव एनी क्वेरीज? नहीं सर। वेरी गुड। तो मैंने यहां पर इसको यूज किए हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर, हियर, अब देखिए यहां पर ये क्या करेगा, बताएंगे सर, आप बताइए आउटपुट क्या होगा, केवल पाई चार्ट ही आएगा ना, केवल क्या होगा, पाई चार्ट होगा या नहीं होगा, वन डी अरे है ना, अरे हाँ जी। केवल क्या होगा, इट क्रिएट ओनली द पाई चार्ट। अगर हम चार्ट है, नो लेबल, नो यूजर चॉइस कलर, बाय डिफॉल्ट कलर इट इज ए फील्ड इन द पाई चार्ट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं सी, अब देखिए सी ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है, सी पीछे का। देखिए पहले यहां पर टाइप, ये हमारा एक्स अरे है, वन डी, इट इज अ वाई अरे, वन डी। आई हैव यूज्ड हियर टू numpy अरे। नाउ टाइटल इज द वर्ड स्पॉट वॉच डेटा, इट इज अ टाइटल, plt डॉट टाइटल। एक्स लेवल में क्या होगा, प्लस एवरेज प्लस, वाई में क्या होगा, ये plt डॉट प्लॉट एक्स वाई, ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। plt प्लॉट, प्लॉट स्ट्रेट लाइन बनाता है। और plt डॉट ग्रिड, ग्रिड इज इनबिल्ट मेथड्स, वो क्या करेगा, पीछे का शेडो बना देगा, plt डॉट शो। अभी मैं दिखाता हूं कैसे ग्रिड काम करता है, सी वर्ड में होता है ग्रिड, आप पढ़े होंगे भी। तो हमने सी यार अगर रन करवा रहे हैं तो वी कैन सी द रिजल्ट, यही ग्रिड है, दिख रहे हैं ना बॉक्स। अगर गुरुजी ये plt डॉट ग्रिड को हट अनएक्टिव करते, देखिए अनएक्टिव कर दिया मैंने, देख रहे हैं ना, आप रन करिए तो हट जाएगा, पीछे का हट गया कि नहीं हट गया। अगर हमने यहाँ पे ग्रिड को लाना है, अब इसको रन करिए, देखिए ग्रिड आ गया कि नहीं आ गया अब। तो ग्रिड का मतलब क्या है, हमारा ये जो है बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये शेप, ये है ग्रिड। और इसका टाइटल भी क्या आ रहा है, स्पॉट एंड वॉच। एक्स में क्या है, एवरेज पल्स, वाई में क्या है, कैलोरी। हैव यू एनी क्वेरीज? नो। राइट। तो अभी तक हमने क्या बात किया है, अब इसको मैं पहले सेंड कर देता हूं। अभी तक मैंने, भेज दूंगा बाद में। अभी तक हमने क्या बात किया है, अभी तक इतना ही बात किया है कि हमने कैसे यूज करना है मैटप्लॉटलिब। हाउ कैन यूज हेयर मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब हम कैसे यूज करते हैं, पॉइंट इज क्लियर। तो मैटप्लॉटलिब क्या है बताएंगे, इट इज अ डेटा विजुलाइजेशन चार्ट, डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। वी हाँ कैन जी। यूज हेयर मैटप्लॉटलिब, राइट। और मैटप्लॉटलिब जो है हमारे पास में ग्राफ बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आई होप। आगे हम बात करते हैं पाइथन के बाद, नाउ वी आर टॉकिंग हियर, स्टार्ट करते हैं। वह टॉपिक्स हमारे पास में होता है, इट इज एम एल। स्टार्ट करें सर, आज बेसिक इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं, हाँ जी। राइट।
आपका नाम क्या है? एमएल। एमएल बोले तो मशीन लर्निंग, राइट? नाम क्या है आपका? एमएल। मशीन लर्निंग क्या होता है? अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि व्हाट इज अ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होता सर है? सर इसमें पाइथन में यही है हमारे पास जितना हम लोगों ने पढ़ा है। हेलो सर, हेलो। बताइए। ये पाइथन का कंप्लीट हो गया सर? पाइथन का मशीन लर्निंग में यूज होगा। अच्छा। पाइथन में तीनों लाइब्रेरी फाइल हमने पढ़ा दिया, ठीक। राइट? आपको नंपाई, पांडा, और क्योंकि आपको डेटा साइंस में जानी है, डेटा साइंस कोर्स है ना आई हाँ थिंक, जी हाँ जी। एनालिटिक्स, डेटा साइंस। डेटा साइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे। ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है बताएंगे आप? मशीन लर्निंग क्या है? मान लिया जाए एक ये मॉडल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने क्या किया है, डेटा को इनपुट कर रहे हैं। नहीं सर, क्या कर रहे हैं? ये डेटा हिस्टोरिकल डेटा है। क्या है सर? ये डेटा हिस्टोरिकल डेटा है। और ये आपका है मॉडल। क्या नाम है सर आपका? आपका नाम है मॉडल, राइट? हमने यहां पर क्या किया है, इस मॉडल में डेटा क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर? मॉडल में क्या किया है, डेटा यहां पर हम लोग इनपुट कर रहे हैं। अब देखिए, मॉडल में जब डेटा जाएगा तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये क्या करेगा मुझे, प्रोसेस के बाद ये आउटपुट रिजल्ट देगा। क्या देगा सर? ये आउटपुट रिजल्ट देगा। तो यही बात होती है ना यहाँ पर मशीन लर्निंग में जो हम बात करते हैं। सी, ये मॉडल में क्या होता है, ये मॉडल में होता है, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। क्या होता है? एल्गोरिथम कहें या लॉजिक कहें या फॉर्मूला कहें, बात एक ही चीज है। मशीन लर्निंग काम करता है लॉजिक बेस, एल्गोरिथम बेस, फॉर्मूला बेस। जैसे मैं लेमन एग्जांपल कहूं, मशीन लर्निंग का डिसएडवांटेज होता है कि डज नॉट मेक द डिसीजन। मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करता है। पॉइंट इज क्लियर? मशीन लर्निंग की कैपेसिटी डिसीजन मेकिंग का नहीं होता है। डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी होता है वो होता है आपके पास में, इट इज ऑफ, यहां पर बात करते हैं एआई की बात होती है। तो हम एआई की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के काम होता है। पॉइंट इज क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, तो एक एग्जांपल ले, मैं समझिए मशीन लर्निंग का। मान लिया जाए कि आप सपोज किसी भी एक्स पोजीशन पर आप लोकेटेड हैं, आपके पास में कार है। कार में आपने एल्गोरिथम डाल दिया कि गुड़गांव बस स्टैंड से आप जो है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन जाओ। आपने कार में एल्गोरिथम डाल दिया कि आप गुड़गांव बस स्टैंड से एमजी मेट्रो स्टेशन जाओ। बीच में बहुत सारे कट पॉइंट होगा। मान लिया जाए इफ्को चौक पे एक कट पॉइंट है जहां पर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। अगर वो कार इफ्को चौक से एमजी रोड के लिए जा रही है, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो कार उस पैसेंजर को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेगा। इन बिटवीन वो डिसीजन चेंज नहीं करेगा। जो एल्गोरिथम उसमें फिक्स्ड है कि गुड़गांव टू एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, वो सीधा स्टेट जाएगा। इन बिटवीन वो डिसीजन चेंज नहीं करेगा। तो क्योंकि उसमें एल्गोरिथम जो मॉडल में है वो फिक्स है। तो मशीन लर्निंग काम करता है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स। जो इनपुट डेटा है वो प्रोसेसिंग करेगा बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, बेस्ड ऑन फार्मूला, बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ये बात करते हैं यहाँ पर किसमें, एमएल की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग हियर मशीन लर्निंग, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि 15-20 मिनट में मशीन लर्निंग जो टाइप्स होते हैं वो ध्यान से समझेंगे। अगर मशीन लर्निंग के टाइप्स की बात करते हैं तो हम 4 टाइप की बात करते हैं। वी आर डिस्कस देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ एमएल्स। एमएल की बात करते हैं, एमएल 4 टाइप के होते हैं। हम कल भाई यहां से बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ना ले रहे हैं। पहला हम बात करते हैं सर, कराता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, राइट? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में गुरुजी क्या होता है कि जितनी भी डेटा होता है, ऑल डेटा आर लेबल्ड। सारा डेटा क्या होता है, लेबल्ड होता है। मतलब पिक्चर फॉर्मेट में होगा, इमेज फॉर्मेट में होगा। तो पहला चीज होगा, डेटा क्या होगा, डेटा जो होगा लेबल्ड होगा। लेबल्ड का मतलब ही होता है
ऑन द इमेज बेस होगा। क्या होगा सर? इमेज, या हम लोग कहते हैं पिक्चर बेस होगा। पहला चीज याद रखेंगे। और वो डेटा क्या होगा? वो डेटा नोन होगा। दूसरा पॉइंट ये भी होगा, डेटा क्या होगा? नोन होगा। जैसे मैं एक लेमन एग्जांपल करता हूं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। सपोज बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। मैं क्या कहता हूं, एग्जांपल में दे रहा हूं, इट इज एग्जांपल ऑफ हेयर, इट इज कॉल्ड हेयर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में देखिए सर क्या हो रहा है। आप ऑफिस जाते हैं, बायोमेट्रिक मशीन जो है, जो बायो आपका, वो क्या है? एक मॉडल है। हमने फर्स्ट डे ऑफिस में गए, मैं ऑफिस के स्टाफ ने मुझसे कहा कि आप पंच कर लीजिए। तो मेरा थंब जो है, थंब इज इमेज, थंब जो है, जो वहां का स्टाफ जो है मुझे रजिस्टर कर दिया। अब वो मशीन जो बायोमेट्रिक है, मशीन जो है वो एक मॉडल है, उसमें मेरा थंब क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। राइट, इमेज रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट जो हम ऑफिस आते हैं, जब हम वो थंब मशीन पर, मॉडल पे हमने क्या किया? पंच किया, तो मेरा अटेंडेंस क्या होता है? सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है, किस बेस हो रहा है? इमेज बेस हो रहा है। वो इमेज पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को रजिस्टर कर दिया गया था। नेक्स्ट टाइम जब हम आए, जब हम थंब मारे, इमेज मारे, पिक्चर मारे, तो क्या हो गया? वो एक्टिवेट होकर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की अगर बात करें, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, डेटा आर नोन। जो भी डेटा होता है वो नोन होता है, पहले से अवेयरनेस होता है, उस मॉडल को पहले से अवेयरनेस होता है। और वो डेटा टेक्स्ट बेस नहीं होगा, वो डेटा अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, वो डेटा होगा इमेज बेस होगा, पिक्चर बेस होगा। ऐसा डेटा कहलाता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दूसरी जो बात करते हैं सी, दूसरा जो पॉइंट होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब देखिए, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की बात में अगर बात करते हैं, इसमें डेटा जो होगा अननोन होगा। क्या कहा? डेटा जो होगा अननोन होगा। डेटा जो होगा अनलेबल्ड होगा। क्या होगा? डेटा क्या होगा? अनलेबल्ड होगा। इसका मतलब हो गया डेटा टेक्स्ट बेस होगा या अल्फा न्यूमेरिक होगा। क्या कहते हैं? डेटा अल्फा न्यूमेरिक होगा, डेटा इमेज बेस नहीं होगा। ऐसा लर्निंग कहलाता है, इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं सर? इट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो पहला जो हो गया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दूसरा हो गया अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होगा? डेटा क्या होगा? लेबल्ड होगा, डेटा क्या होगा? नोन होगा, और डेटा क्या होगा? इमेज बेस होगा। ऐसा लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की आर्किटेक्चर देखते हैं। अगर सर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जाते हैं, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बेसिक कंसेप्ट दो पार्ट में होता है। वो एक जो पार्ट्स होते हैं, इट इज कॉल्ड रिग्रेशन। क्या कहते हैं सर? ये जो पार्ट होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, रिग्रेशन। और दूसरा जो पार्ट्स होते हैं, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। वन इज अ रिग्रेशन, अनदर इज ए क्लासिफिकेशन। में क्या होता है? डिवाइड होते हैं। फिर रिग्रेशन का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेटर वी आर डिस्कस, हम लोग बात क्लास में बात करेंगे। रिग्रेशन के भी टाइप्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। ये सारे क्या है? टाइप्स हैं रिग्रेशन का, जो हम बाद में बात करेंगे। प्रॉपर कल से क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें एमएल शुरू करेंगे। अब है जो सी है, जो हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम मोस्टली बात करते हैं, एल्गोरिथम की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एल्गोरिथम की बात करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सी, के एन एन एल्गोरिथम। क्या नाम सुना होगा? के एन एन एल्गोरिथम्स, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। नाम सुना होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स। आपने नाम सुना होगा सी, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, फॉरेस्ट एल्गोरिथम्स। आपने नाम सुना होगा सी, वह है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एल्गोरिथम या ट्री एल्गोरिथम। ये हमारे पास में नेम बायस एल्गोरिथम, के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ये डिफरेंट टाइप्स के जो एल्गोरिथम्स हैं, हम लोग कहां बात करते हैं? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। So I have discussed here, there are the two things. One is the supervised machine learning. Another is the what? Another is
अनसुपरवाइज्ड मसल लर्निंग वी आर डिस्कस हियर। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो हमारा पास में एमएल में आते हैं वो कहलाता है रीइंफोर्स मशीन लर्निंग। तो दैट्स व्हाट वी आर डिस्कस हियर, इट इज कॉल्ड रीइंफोर्स मशीन लर्निंग। एंड रीइंफोर्स मशीन लर्निंग क्या होता है सर? यहां तक कोई डाउट है सर? पहले ये बता दीजिए। क्लियर है सर। यहां तक क्लियर है? यस। राइट। रीइंफोर्स मशीन लर्निंग का एक लेमन एग्जांपल समझिए, इंट्रोडक्शन। रीइंफोर्स मशीन लर्निंग काम करता है अवार्ड बेस, राइट। जैसे कि एक लेमन एग्जांपल समझिए कि आपको अगर कल का टेम्परेचर निकालना है, दो एग्जांपल बता रहे हैं रीइंफोर्स मशीन लर्निंग लेमन। कल का टेम्परेचर निकालना है तो क्या करेंगे? जो मेरे पास में सर्वर में डेटा है, जो डेटाबेस में डेटा है कि 3 डेज का डेटा का मीन निकालेंगे, इट मीन एवरेज निकाल देंगे। जो एवरेज होगा वो डेटा पर हम क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे। तो ऐसा लर्निंग कहलाता है रीइंफोर्स मशीन लर्निंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, रीइंफोर्स मशीन अवॉइडमेंट कैसे काम करता है। मान लिया जाए एक फादर का 2 बेटा है, एक फादर का 2 बेटा है। फादर ने दोनों बेटा को दिया बीटेक करने के लिए। बड़े वाला बेटा पढ़ाकू था, छोटे वाला हीरो था। तो बड़े वाला बेटा पढ़ाकू था, पढ़ाई किया। छोटे वाला कम पढ़ाई किया, लेकिन दोनों बीटेक पास किया। बड़े वाला जॉब लगा, छोटे वाले की जॉब नहीं लगा। बड़े वाला क्या हुआ? फादर के पास गया, कहा कि मुझे जाने में दिक्कत है, मुझे 20,000 चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए। फादर ने उसको 25,000 बिना पूछे दे दिया। लेकिन छोटे वाला गया, उसको नहीं मिला। तो ये क्या है? 20,000 25,000 क्या? ये अवार्ड्स है। जैसा उसने एक्शन किया है, प्रोसेस किया, उसकी रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? उसका रिजल्टेंट मिल रहा है, उसका अवार्ड्स मिल रहा है। तो रीइंफोर्स मशीन लर्निंग हमेशा जो है अवार्ड बेस्ड काम करता है, हमेशा जो है एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा पे काम करता है। तो मैंने आज केवल इंट्रोडक्शन किया। आई हैव डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ द मशीन लर्निंग के लिए रीइंफोर्स मशीन लर्निंग की। चौथा जो होता है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं सर? चौथा जो होता है इट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। लेकिन ये चलता नहीं है। क्या कहते हैं? सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये चलता नहीं है। तो मुझे यहां पर देखना है सी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, और मेजर है रीइंफोर्स मशीन लर्निंग। ये मेन देखना है। अब देखिए मशीन लर्निंग का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहले डिसएडवांटेज देखिए। मशीन लर्निंग लार्ज अमाउंट डेटा पे बेटर रिजल्ट नहीं देता है। क्या कहा सर? मशीन लर्निंग स्मॉल अमाउंट डेटा पर ही बेटर रिजल्ट देगा। स्मॉल अमाउंट डेटा सेट्स होगा, उस पर ये बेटर रिजल्ट देगा। इफ द कम्प्लेक्स डेटा, लार्ज डेटा सेट होगा, बड़ा डेटा होगा, बिग डेटा होगा, उस पर एक्यूरेसी इसका सही से नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। तो मशीन लर्निंग क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग काम करता है एल्गोरिथम फॉर्मूला पे। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कम्प्लेक्स डेटा है, तो गुरु जी क्या करेंगे? वहां पर हम करते हैं डीप लर्निंग। क्या करते हैं? वहां पर हम पढ़ते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बेस पर इंप्लीमेंट होता है। तो क्या यूज करते हैं? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमेशा जो रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है लार्ज अमाउंट डेटा पे। डीप लर्निंग स्मॉल अमाउंट डेटा पे बेटर रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो स्मॉल अमाउंट डेटा पे अगर रिजल्ट लेना चाहता है तो यूज करते हैं मशीन लर्निंग। दूसरी पॉइंट, मशीन लर्निंग में अगर कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, उस पिक्चर की प्रॉपर्टी को उठाकर मुझे डालना पड़ेगा मॉडल में, तब वो मॉडल उसका रिजल्ट देगा। मशीन लर्निंग में बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर कोई इमेज है, इमेज के फीचर कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट करके हमको मॉडल में डालना पड़ेगा, उसके बाद मशीन लर्निंग उसका रिजल्ट देगा। डीप लर्निंग नहीं है। डीप लर्निंग कहता है तो मुझे इमेज भेज दो, हम स्वयं उससे फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसका हम एग्जैक्ट कर हम आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट दे देंगे। तो ये बात होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग के लिए यहां पर जो हम लोग यूज करते हैं। और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जाएंगे तो आपको 2 पॉइंट पढ़ेंगे, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज रिग्रेशन, अभी टाइम है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट होता है, एक होता है एक्स पॉइंट और एक होता है वाई पॉइंट। देखिए 2 एक्सिस मेरे पास में है, ये जो पॉइंट्स हैं सी, इसको कहते हैं वाई पॉइंट और इसको कहते हैं एक्स पॉइंट, राइट। और ये हो गया 0, राइट। अब देखिए कोई भी अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, जो एक्स पॉइंट है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। याद रखिएगा क्या कहते हैं सर? इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्योंकि मैं यहां पर अगर डाल रहा हूं हिस्ट्री,
मैं डाल रहा हूं मैथ, मैं डाल रहा हूं इंग्लिश, क्या सारे स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट में मार्क एक जैसा होगा? आंसर इज नो। तो जिसकी डेटा वैल्यू चेंज हो वो कहलाता है इंडिपेंडेंट एक्सेस। मैंने कहा सी कि जिस बच्चे की 60% मार्क्स हैं वह पास होगा पूरे स्कूल में, चाहे वह 8th क्लास का है, 9th क्लास का है, 10th क्लास का है। जिसकी 60 से नीचे होगा वो फेल होगा। तो ये वैल्यू किसके लिए है? ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो वाई एक्सिस को कहलाता है डिपेंडेंट एक्सिस। राइट, क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट एक्सिस। तो रिग्रेशन किसके किसके बीच में होगा? डिपेंडेंट एक्सिस और इंडिपेंडेंट एक्सिस आपस में रिग्रेट करेगा तो बनाएगा ग्राफ। क्या बनाएगा वह बनाएगा इमेज ग्राफ। अगर ये एक्सिस आपस में रिग्रेट करेगा तो बनाएगा ग्राफ। पूछता है कि डिपेंडेंट एक्सिस क्या होता है? डिपेंडेंट एक्सिस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है, वैल्यू फिक्स होता है। इंडिपेंडेंट एक्सिस की वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल क्या कि हिस्ट्री में तो सारे स्टूडेंट को हिस्ट्री में एक जैसा मार्क्स नहीं होगा, मैथ में एक जैसा मार्क्स नहीं होगा, इंग्लिश में एक जैसा मार्क्स नहीं होगा, वैल्यू क्या होगा? सारे का मार्क्स चेंज होगा। लेकिन कहा कि अगर स्कूल ने 60% से जो बच्चे पे ज्यादा मार्क्स हो वो पास हो, नहीं तो फेल हो। तो ये क्राइटेरिया सारे बच्चे के लिए हो गया, फिक्स हो गया। तो ये चेंज नहीं होगा। तो आप डिस्कस हियर dependent axis and the independent axis is here. Have you any queries? हेलो सर। नो जी। आप देखिए रिग्रेशन के टाइप से अगर बात करते हैं तो पहला होता है हमारे पास में लीनियर रिग्रेशन। थोड़ा सा बात करते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला होता है लीनियर रिग्रेशन। वी आर टॉकिंग हियर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जितना एक्स की एक्सिस बढ़ेगा उतनी ही वाई की एक्सिस बढ़ेगा। बोथ एक्सिस आर पैरेलल इंक्रीजेस, ऐसा कहलाता है, इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। अगर मान लिया जाए दो एक्सिस है, कल से हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर हमारे पास में दो एक्सिस है सी एक्स एंड वाई, तो जितना ये एक्स के एक्सिस बढ़ेगा उतना ही वाई के एक्सिस बढ़ेगा। ऐसा रिग्रेशन कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। तो आज मैंने केवल मैमल का इंट्रो पॉइंट किया है, प्रॉपर एक शेड्यूल में नहीं चला है, बेसिक कंसेप्ट बताया है कि मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग हिस्टोरिकल डेटा पे एल्गोरिथम बेस्ड रिजल्ट देता है। डिसीजन मेकिंग का काम मशीन लर्निंग नहीं करेगा। मशीन लर्निंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इट इज कॉल्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इमेज बेस्ड होगा, डेटा लेबल्ड होगा, डेटा नोन होगा। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग नहीं, डेटा अननोन होगा, डेटा अनलेबल्ड होगा, डेटा अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट बेस्ड होगा। डेटा ये काम करता है एल्गोरिथम में। ये हम बात करते हैं सी रेनफोर्स मशीन लर्निंग हमेशा काम करता है अवार्ड बेस्ड एक्शन बेस्ड रिस्पॉन्स होता है, और सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और यहाँ पर हम बात की सी रिग्रेशन पोजीशन। रिग्रेशन में दो बात करते हैं, इट इज जस्ट रिग्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन इज एग्जांपल ऑफ द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। रिग्रेशन का मतलब होता है सी कि हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस आपस में रिग्रेट करेगा और इमेज बनेगा। जब तक दो एक्सिस आपस में रिग्रेट नहीं करेगा तब तक वो इमेज नहीं बनाएगा। नाउ जो एक्स एक्सिस है इट इज अ इंडिपेंडेंट एक्सिस। व्हाई? बिकॉज जो डेटा क्या होता है इसका एडिटेबल होता है, म्यूटेबल होता है, चेंज होता है। वाई एक्सिस क्या है? डिपेंडेंट एक्सिस है। वह वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो आप डिस्कस हियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्सिस। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन में आता है लीनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। सबके प्रोग्रामिंग होगा, लेटर वी आर डिस्कस टुमारो, है ना, स्टेप बाय स्टेप्स। तो आज हम के बाद बेसिक इंट्रो की बात की है। सर सर इसका मुझे जो है ना वो स्टडी मटेरियल भेज दीजिए प्लीज। आप एक काम करेंगे, मटेरियल लेंगे तो मुझे एक काम थोड़ा सा कर देंगे मुझे। हाँ जी हाँ जी। एक काम थोड़ा पाइथन का दे दिया था मटेरियल ना? नहीं सर, कोई सा भी नहीं है। नहीं किया? तो एक काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी। मुझे 10:30 बजे 11 बजे मुझे रिमाइंडर देना पड़ेगा। ठीक है सर। नाइट एक बार खाली रिमाइंडर कर दीजिए। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। तो खत्म करते हैं, वो आपको भेज देता हूँ आपके, है ना, व्हाट्सएप पे प्रोग्राम।